بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دل اداس ہو اور وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو شخص گالیاں دیتا ہو اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ باوجود رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت تو کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف اللہ کی ناراضگی ہوتے تو یہ نبیوں کو نصیب نہ ہوتے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سے کی جانے والی ایک خاموش گفتگو دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ کسی انسان کے دل کو دکھ دینے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ایسے مکار لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے۔ ان لوگوں سے جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے یعنی گفٹ دیتے رہا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ لیکن اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بس مجھے یاد کرو تو میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن زبان کے 2 میٹھے بول دل کو خرید لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دو لیکن انہوں نے جو سبق دیے ان کو یاد رکھو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رشتہ جوڑو۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے تو وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب کہے بغیر محسوس کیے جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ جو لوگ سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے گا، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے گا، رسول پاک کی سنت پر عمل کرو تو زندگی سنور جائے گی۔ فکر نہ کریں تو لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کو اور نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں ملے، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شمار ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے
इसे सुकून दें, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। जहाँ कदर ना हो, खुद को वहां से खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती, उनको हीरा भी कांच नजर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। यह काम तो चमचे और मक्कार लोग ही कर सकते हैं। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को जख्मी करते हैं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं। यह नसीब से मिलती है, औकात नहीं। मर्द अगर अकेला बाहर जाता है तो औरतों को घूरता है, लेकिन अगर औरत के साथ जाए तो मर्दों को घूरता है। किसी भी मुश्किल में किसी बुजदिल इंसान से कोई मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की हिम्मत को भी खत्म कर देगा। वक्त और समझ एक साथ तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। झूठ का भी एक अलग मजा होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। इरशाद बारी ताला है, और जब बात कहो तो इंसाफ और अदल की कहो, चाहे मामला अपने रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो। हजरत रबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। खुशी और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो अगर एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर कभी जोड़ भी ले तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलो जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर भी कभी भरोसा ना करो जो आपसे झूठ बोलता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद और वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी, और यही फितरत का कानून है। मजहब से अगर इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। जिंदगी को सादा मगर ख्यालों को हमेशा बुलंद रखो। वो 7 चीजें जो हम खरीद नहीं सकते: दोस्त, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, सेहत, खुशियां और वक्त। जब दिल में बुराई, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ रिश्ते नाते हार जाते हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अपनी जिंदगी में खुद रोशनी पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारा अपने अलावा कोई वफादार नहीं है। अपनी जुबान को सलाम करने की आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके, और बेहतरीन सोच खुद में सुधार करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों ने जालिम को देखकर उसका हाथ ना रोका तो करीब है कि अल्लाह उन सबको अजाब में पकड़ ले। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा किया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब दोस्त तरक्की करे तो फक्र से कहो कि वो मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो फक्र से कहो कि मैं उसका दोस्त हूँ। जिनको छोड़ना होता है वो दिन और रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है वो हालात नहीं देखते। अगर इंसान अपनी उंगली का इस्तेमाल अपनी गलतियों को गिनने के लिए करे
तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है। सुनने वाला सुनकर, और देखने वाला देखकर, और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। अगर रिश्तेदार और लोग आपको नजरअंदाज करें और अहमियत ना दें तो उन्हें सबक सिखाने के यह 4 बेहतरीन तरीके इख्तियार करें। नंबर 1, खुद को मजबूत बनाएं। लोग अक्सर कमजोर और मोहताज शख्स को नजरअंदाज करते हैं। अपनी शख्सियत, माली हालत और महारतों को बेहतर बनाएं ताकि लोग खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 2, खामोशी और बेनियाजी इख्तियार करें। जो लोग आपको अहमियत नहीं देते उनके पीछे मत भागें। खामोशी और बेनियाजी सबसे बड़ा जवाब है। जब वह देखेंगे कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं तो वो खुद आपको तवज्जो देना शुरू कर देंगे। नंबर 3, अपनी जिंदगी पर फोकस करें। अपने ख्वाबों और मकसदों पर तवज्जो दें, क्योंकि कामयाबी सबसे बेहतरीन बदला है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वही लोग आपकी अहमियत को समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 4, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारें। उन लोगों के पीछे वक्त बर्बाद ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी इज्जत करें और आपके जज्बात और एहसासों को समझें और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव असर डालें। याद रखें, आपकी अहमियत किसी के रवैये से कम व ज्यादा नहीं होती, बल्कि आपके खुद एतमादी और कामयाबी ही आपकी असल पहचान है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रोती हुई औरतें और हंसते हुए मर्द पर कभी भरोसा मत करना। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई याद किया करो। फासले इंसान को जरूर दूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से गीली ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। फकीर को सदका आजिजी और अदब का साथ दो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी है। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। हम किसी की नज़र में अच्छे थे तो किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान होता है उतना ही ज्यादा दिल का इत्मीनान होता है।